हाँ जी सर, आप रेडी है? पूछो जी अमन। Very clear कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल अलायंस नवजोत सिद्धू also saying कि 10 सीटें चाहिए। ये अंदर की कहानी क्या है? Why नवजोत सिद्धू is not there? हिंदी में बताइए। Why is not there? एक लोग बैठ के जाइए आराम से, आप लोग सवाल पूछना आराम से। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। मैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का, सरदार प्रगट सिंह होਰਾਂ ਦਾ, जथेदार बलविंदर सिंह बैंस होਰਾਂ नालों ਵੱਧ सत्कार कीता करांगा ते सारी जिंदगी करता रहांगा। ऑनेस्ट पर्सन पॉलिटिकली मैं थोड़े सवाल का जवाब दूं। पॉलिटिकली बता देना हिंदी में बता दें। मैं साहब ये दसो भी आवाज़े पंजाब खत्म हो गई सर, हजे आवाज़े पंजाब का तो क्लीयर हो गया अपने आप दे विच ही जवाब हैगा भी लोक इंसाफ पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी नाल हो रहा। असी इस पीक डेज के उत्ते पीक टाइम के उत्ते बहुत बड़ा एक अपने ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਭੋਗ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। हाँ जी सर, एक बारी भी नहीं की। मेरी गल सुनो, मैं दसन लग्या। सुनो मेरी गल सुनो। जे किसी सोशल ओकेजन के उत्ते किसी ब्याह शादी के उत्ते तुसीं ते मैं रल के ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਿਟੀ ਸਪੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨਦਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। सब्जेक्ट किया कि बादलों ते बादलों की कार्बन कापी कैप्टन परे किवें करनी इशू है। tomorrow नवजोत सिद्धू joins कांग्रेस पार्टी। नो ये उन्होंने पूछ मैनू इस गल दा नहीं पता। उनको भी सवाल पूछने दीजिए ना भाई, उनका भी तो सवाल है। तीसरा सवाल हाँ विशाल पीछे कर रहे हैं। मिसगाइड होके चले गए। हाँ सूची बना के जावांगे। नाम मत लीजिए, सूची बना सूची बना के सारे सारे पंजाब के हित चाहने वाले बंदे है ना वो सारे अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे तो उस समय सुखबीर बादल जी को जाके लड़ना था मोदी के खिलाफ। सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भगवंत मान ने किया है और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में हराएंगे उनको पूरी तरीके से। आप उसका इंतजार झाड़ू के सिंबल से चोन लड़ोगे या साडा सिंबल जेड़ा वो विदिन वीक और 10 डेज ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਫਿਰ? अच्छा सर you have been working under the leadership of Navjot Sidhu. How is he as a political person? मतलब कारण क्या था? समर्थन कर रहे वो समर्थन करना चाहते सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀडम ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ you took so long ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੱਗੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20-21 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। सर एक गल दसो, तुसी राजनीति का धंधा नहीं करते, नवजोत सिद्धू इधर नहीं आए तो क्या वो धंधा करते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਨਵਜੋਤ सिद्धू जैसे तो मतलब ये देयर आर स्टिल चांसेस ही कुड जॉइन आम आदमी पार्टी। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ क्या तब भी आप उनके साथ इसी तरीके से रहेंगे? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। विजय राजे सिंधिया और माधवराज सिंधिया एक ही घर में रहते थे, एक बीजेपी में थी, एक कांग्रेस से जान का सवाल ही नहीं पैदा होता ਸੀਗਾ। बट ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਸੈਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਸੈਡ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੈਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। अब आप लोगों के सवाल खत्म हो गए। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਵੀਰੇ ਆ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾ ਕਹੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਓਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਦੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਈ। वो कदे भी उल्ट फैसला की लेंगे सुरेंद्र सिंह सोढी जो पूर्व हॉकी प्लेयर हैं, उन्होंने आरोप लगाया जब मैं इस पार्टी के विचार टीवी पे देखा करता था मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी में गया तो उनके विचार पंजाब के हित में नहीं है। वो गलत है या अब जो मैंने सुना नहीं जी उनको ये बात। देखिए समय समय पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग टिप्पणियां आती रहती हैं, तो डेमोक्रेसी में हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने के लिए। आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी किन वसूलों सिद्धांतों पे काम करती है, ये इसमें काम रहने वाला हर कार्यकर्ता जानता है। जो मेहनत कर रहे हैं लोग गाँव में शहरों में पार्टी के लिए वो जानते हैं, जो जुड़ रहे हैं वो जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है बीच बीच में किसी मुद्दे पे किसी की नाराजगी हो सकती है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नोटिफाई किया है सरकार ने, किसानों को जमीनें वापस की है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? देखिए और दूसरा सवाल एक और पूछ लेता हूँ, किस किसान अभी असमंजस में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाए या वो खुशी मनाए कि हमें अपनी जमीन वापस हो। तो एक क्वेश्चन था। पहली बात तो ये कि 9.5 साल से ऊपर शासन हो गया, 9 साल 10 महीने हो गया। अगर आपको डी नोटिफाई करना था, किसानों की जमीन देनी थी, तो आप 9 साल 10 महीने तक क्या करते रहे? आप 9 साल 10 महीने तक पंजाब के किसानों को मूर्ख बनाते रहे, उनको ठगते रहे, उनके साथ झूठ और फरेब आप करते रहे।
मोदी जी की सरकार आई, आपने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस नहीं किया। आप चाहते तो मोदी जी से कहते कि पंजाब के हित का मामला है और ये ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, जो गलती कांग्रेस ने की है वो अपराध आप मत कीजिए मोदी जी, आप मुझे नेल्सन मंडेला मानते हैं, मेरे कहने पे एक काम नहीं कर सकते आप? इतना कम से कम बादल साहब को कराना था, वो भी नहीं करा पाए। और ये डी-नोटिफाई करने का बैन साहब बेहतर बता पाएंगे, विधानसभा में प्रस्ताव तो 6 महीने पहले इन्होंने पास किया था, अभी तक जमीन क्यों नहीं दी किसानों को? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये किसान को जमीन देने की ड्रामेबाजी है। लेकिन किसानों को जो जमीनें कब्जा की गई उनको वापस दिया जाता है, इसका कौन स्वागत नहीं करता है? हृदय से हम स्वागत करते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, झूठे लोग हैं, ड्रामा कर रहे हैं। 9 साल 10 महीने तक जमीनें नहीं दी, अब जिन लोगों ने जमीनें कब्जा की है 2 महीने चुनाव के पहले वो ड्रामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर जो एक बात, 2 महीने रह गए सरकार बदलने में और आप ये सोच रहे हैं कि अगर तो ये किसान को बेवकूफ बना रहे हैं, इनको पता है कि अगर ये कोर्ट के अगेंस्ट जाता होगा तो किसान मुसीबत में आएगा, मार किसको पड़ेगी? किसान को। मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरी पूरी बात सुन लीजिए, और यहाँ इनको पता है कि हम एक बार डी-नोटिफाई करके निकल जाएं, जो दूसरी सरकार आएगी उसके लिए मुसीबत खड़ी होगी, वो ये पॉलिसी पे चल रहे हैं। और अगर गलती से हम दोबारा आते हैं, उनके दिमाग में ये है कि अगर गलती से भी हम दोबारा आते हैं तो फिर से नोटिफिकेशन निकाल दें कि नहीं भाई ये नहर ऐसे ही रहेगी। वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल देंगे अगर फिर से आए, नहीं तो डी-नोटिफाई करके किसान को मुसीबत में डाल रहे हैं कि किसान कोर्ट में जूझता रहे या जो नई सरकार आएगी वो जूझती रहे, तीनों सूरतों में बेवकूफ बना रहे हैं। संजय जी, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जो स्विस बैंक के अकाउंट डिटेल आज केजरीवाल जी दे रहे हैं, कहते ये पुराना ही सिस्टम चला रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस वो आगे लोगों को उनके नए अकाउंट्स भी होंगे जिनका नहीं पता, उनके पास मुद्दा कोई नहीं है, बस उसी के लिए बार बार आ रहे हैं, उनके पास कुछ मुद्दा रहा नहीं है। अगर 400 करोड़ रुपए की लूट करने को अमरिंदर सिंह जी मुद्दा नहीं मानते तो हो सकता है उनको बहुत छोटा अमाउंट लगता हो 400 करोड़ रुपए की लूट। एक स्कैम में तो अगर उनको सिटी सेंटर घोटाले की लूट ज्यादा बड़ी नहीं लगती तो मुझे इस पे आश्चर्य नहीं, और राजा महाराजा हो सकता है उनको छोटा लगता हो। अगर उनको अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ वो बड़ा नहीं लगता तो मुझे इस पे कहीं आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है, कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जनरेटर है। 2G किया, कोयले का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। और उस पार्टी के अगर वो प्रधान है पंजाब के तो वो भ्रष्टाचार करेंगे और किया है, ये सच हम बार बार जनता को बताएंगे। जो डिटेल्स आज अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं वो अकाउंट्स की डिटेल पूरी तरीके से सही है, वैसे ही सही है जैसे अंबानी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल दी थी केजरीवाल जी ने, वैसे ही सही है जैसे बाड्रा के भ्रष्टाचार की डिटेल्स दी थी, वैसे ही सही है जैसे 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार की जानकारी देश को दी थी। तो जब जो फंसता है वो इनकार करता है, वही वो कर रहे हैं। और कैप्टन साहब ये भी कह रहे, ऐसा चलने का मकसद ये होना कहता कि तुसी मेरे पुराने अकाउंट्स की गल कर रहे हो, मैंने 3 होर खुलवाए ने, ਉਹਦਾ पता करो।